Okay, good morning everyone. How are you all? I am fine, sir. What Good about morning, you? I'm also fine, thank you. In today's English live class, we are going to study English subject, and in English, we are going to revise the concept whatever we learned in our last class. In our last class, we studied about the prepositional. What was the topic name? Can anybody remember? Grammar junction. Yes, sir, grammar junction. In grammar junction, what we did study? I'm asking for the topic. Prepositional phrases. Yes, prepositional phrase. In our last class we studied about the prepositional phrases. So prepositional phrases क्या होते हैं? I hope everybody can identify. पहचान सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहां से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. Thereafter also we are going to give the answer for the question. Also we would be solving the exercise of this section. Okay? Yes, sir. एक बार जीरन एक बार बता दीजिए. Gerund फिर से आपको बताना है. What are the gerund? Who is asking? Yes, sir. Who is asking? Can you please raise your hand? Sir. अरुण. ओके बेटा, जीरन आपका नाउन आप पहचानते हैं? Yes, sir. नाउन आप पहचानते हैं? Yes, sir. वर्ब आप पहचानते हैं? Yes, sir. In our last session we talk about the gerund, we talk about the preposition, we talk about the noun and pronoun as well. gerund के बारे में अरुण को कंफ्यूजन है क्या? और भी किसी के पास कोई प्रॉब्लम है gerund को लेकर के? कौन बता सकता है? महक, व्हाट आर द gerund? Sir, ing form of verb, act, and adjective for a noun. बेटा, there were some of the confusion I think. When ing form of the verb act as a noun. हाँ बेटा. यस सदात्री बताइए. Sir, the ing form of the verb act of adjective is called gerund. बेटा, लेट मी कंफर्म, लेट मी क्लियर वन थिंग. कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है. आई थिंक गलती से मैं एक बार बोल गया था एक सेशन में एडजेक्टिव, उसके बाद में मैंने नाउन कहा था. आप लोगों ने वही शायद ध्यान रखा है. व्हेन ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्ट like a noun, not adjective, okay, then it will be called as gerund. gerund एक तरीके से नाउन का ही दूसरा नाम कह सकते हैं, बट सारे नाउन जो हैं वो gerund नहीं कहलाएंगे. जब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका नाउन की तरह दिखे तब आपका gerund कहलाएगा. महक, समझ में आया? Yes, sir. gerund अभी क्लास 5 में पढ़ाया भी जा रहा है. क्लास 5 में इंग्लिश के टॉपिक में whenever you can feel free, you can ask from your brother आदर्श, नहीं आदर्श नहीं, वो दूसरे अमन से. अमन को इस समय gerund के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो उसके बुक में डिटेल में लिखा हुआ भी है, डिटेल में gerund के बारे में एक्सरसाइज भी है. तो एक चीजें ये क्लियर रखना. whenever आपकी आवाज कट रही है. Okay, no issue. Just please remember, whenever a noun work just like whenever a ing form of the verb act as a noun, it will be called as gerund. वो gerund कहलाएगा. Is it clear? अभी समझ में आ गया? Yes, sir. Arun, do you have any issue with the gerund? अभी gerund समझ में आया बेटा? So अभी gerund के बारे में क्लियर हो गया. Now move ahead. In our last session we studied about the prepositional phrases. Prepositional phrases क्या होते हैं? Who can speak? Prepositional phrases क्या होते हैं? phrases क्या होते हैं? Prepositional phrases क्या होते हैं बेटा?
अंश, अनूरल, सिद्धात्री, अनुर, किसी को ध्यान है? What we did study about the The preposition phrases are part of sentence. दीपिका वर्मा बताइए। Phrases start with preposition are known as prepositional phrases. ऐसे फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से शुरू होते हो वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं पता है? Yes, sir. इसकी पहचानना पड़ेगा ना कि Yes, फ्रेजेस yes, हैं sir. क्या आखिर। यस, क्या होते हैं? कौन बताएगा? क्या फ्रेजेस? महक बताइए। A phrase is a part of a sentence without object. Phrases are also the part of the sentence. कह सकते हैं it is a group of some words without subject and verb. ठीक है, जो कि complete sentence Yes, sir. कहलाते हैं। Yes, Yes, sir. So let us read ahead. जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। Now, बेटा already we have studied these lines yesterday. This sorry, this is a grammar junction. We were studying grammar station, है ना? Yes. We studied Yes, sir. these lines, and in these lines there are some words that are underlined. That are some words also that are in bold format. जो अंडरलाइन, जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बारे में क्या पढ़ा था? लुक एट द अंडरलाइन फ्रेजेस। जो ये फ्रेजेस आपका अंडरलाइन है इनमें देखते हैं। फॉर वन लास्ट टाइम, ऑन द सेंटर टेबल, in the bedroom, in the sink, to the door. आप इसमें अगर देखते हैं तो then what we are getting? They are getting that सर ये मेरे all बुक में start with नहीं a है। preposition. क्या हो बेटा? हाँ बेटा, सर हम लोग ग्रामर जंक्शन पढ़ रहे हैं। सर ये ग्रामर स्टेशन है। अच्छा ग्रामर स्टेशन है, ग्रामर जंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ग्रामर जंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं आज कंफ्यूज स्वयं हूँ क्या? तो व्हाट भी यही है ना टॉपिक, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। यस, हाँ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपका ये भी है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस वो भी है। तो कुछ कंफ्यूजन थी उसको लेकर के। देयर आर बोथ द टॉपिक्स आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस फ्रॉम द सेम चैप्टर, बट ग्रामर जंक्शन, ग्रामर स्टेशन, टू सेक्शंस आर देयर। ग्रामर स्टेशन में हम इसी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को ही रिवाइज करेंगे। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन दीज लाइंस। जो भी ये बोल्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कई सारे लाइंस हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि दीज आर द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे कि आप स्टडी रेन beneath a sack of rice with candles and with lanterns on the mud baked balls. What we got here? यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं वो किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पहले जुड़ी हुई होती हैं। और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होता है? या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो जीरंड होता है। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं। ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ लुक अहेड सम मोर एग्जांपल्स। Yes, sir. The carrots in the curry are not properly boiled. The carrots in the curry. तो the curry is a, ये करी क्या है? कोई नाउन है या वर्ब है या क्या है लग रहा है? करी से कोई एक डिश का नाम ही तो है। Yes, sir. नाम ही तो दैट मींस के So, noun है। नाउन के पहले आपका ये आ रहा है इन, प्रीपोजिशनल। तो इन द करी, तो दिस इज, एंड look into the second line, the third shape. The books on the third shapes are all about the archaeology. तो जो इसमें आपका the third shape is an object, एक तरीके से ये भी आपका नाउन ही है, जगह की नाम बताया जा रहा है, प्लेस का नाम बताया जा रहा है। and on is a preposition words. So what we have got in these couple of line also, the parts of in bold are prepositional phrases. जो ये bold कलर में है ये prepositional phrases के पार्ट हैं। क्यों? प्रीपोजिशनल फ्रेज के कौन से पार्ट हैं? प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में प्रीपोजिशंस और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन या जीरंड होंगे। तो ये आपका जो बोल्ड फॉर्मेट में दीज आर द प्रीपोजिशन एंड आर कॉल्ड द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, द पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। दे डिस्क्राइब, ये आखिर बताते क्या है ये प्रीपोजिशन, इसको समझते हैं।
they describe the preceding nouns. The phrases in the curry describes the carrots, and on the third shape describe the book. जो आपका यहाँ पे जो prepositions है ये curry के बारे में और third shape के describe कर रहे हैं. समझ में आया? Yes, sir. They all answer the question which. ये जो आपका जो ये prepositions यूज किए गए हैं, they can answer that की which. The carrots में क्या, the books मतलब which. आप अगर यहाँ पे the books की बात करेंगे तो which की जब से आप करेंगे क्वेश्चन करेंगे, then you would be telling that कि कौन से बुक, जो थर्ड शेप में बुक है. Now they all answer the question which carrot, the ones in the curry. कौन से कैरेट की बात की जा रही है? करी में जो पड़ा हुआ है. which कौन से बुक की बात की जा रही है? The ones on the third shape, जो थर्ड शेप में जो बुक पड़ी है उसकी बात. ठीक है? Yes, sir. Yes. So they act as adjective in the sentence. अब ये जो आपको ये preposition है, जो आपके preposition word हैं, कहीं ना कहीं वो आपको as an adjective की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है? Yes, sir. Let us look at the some more sentence. कुछ और sentence को पढ़ते हैं. I hurt my back at the aerobics session yesterday. I hurt my back. मैंने अपने back अपने पीछे मतलब I hurt my back. मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया या चोट पहुंचा दिया at the aerobics session yesterday. जो aerobics session था उस सेशन में मैंने अपने बैक को हर्ट किया. अब यहाँ पे आप देखें the aerobic session is a phrase and before this phrase there is a at preposition word. That means कि this is a prepositional phrases. अब इसमें अगर आप देख रहे हैं जो at है, at जो यूज किया गया है इस नाउन मतलब इस नाउन के लिए aerobic session during the aerobic session एक तरीके से नाउन के लिए ही यूज किया गया है. ओके अब यहाँ पे कोई वर्ब आपका एज ए नाउन काम करता, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कोई अगर नाउन की तरह काम करता है तो जीरंड होता है. यहाँ पे जीरंड नहीं है. ओके Yes, sir. द चिल्ड्रन विश द टीचर इन ए सिंगिंग वॉइस. अब यहाँ पे आप सिंग सॉन्ग वॉइस. द चिल्ड्रन विश द टीचर, जो बच्चे हैं वो टीचर को विश किए. एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस एक तरीके से कहेगा किस फॉर्म में? इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस. इन सिंग सॉन्ग वॉइस एक तरीके से कि एक पर्टिकुलर वॉइस है, वॉइस का नाम है कि किस तरह की आवाज में. तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ नाउन. एक तरीके किसी पर्टिकुलर वॉइस का नाम है ना, टाइप का नाम है ना. तो दिस इज ऑल्सो नाउन एंड बिफोर दिस इन हैव दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. द मैराथन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी. The parts in bold are also the prepositional phrases. जो bold format में है ये prepositional phrases के part हैं. However, they act as adverb and not adjective. हालांकि यहाँ पे जो ये सारे आपने बात के दो लाइनें पढ़े, यहाँ पे जो ये preposition word हैं ये adjective की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये adverb की तरह काम कर रहे हैं. They answer the question where, how and when respectively in three sentences. अच्छा adjective और adverb में अंतर आपको बताया गया था, ध्यान है? Yes, sir. Yes, sir. क्या होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में? क्या अंतर होते हैं? Sir, adjective is a word which qualify noun or pronoun, but adverb is a word which modifies verb. वेरी गुड. जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. ठीक है? Yes. अभी तक इतना सारा एग्जाम्पल घूम घुमा के एडजेक्टिव का भी एग्जाम्पल दिया, एडवर्ब का भी एग्जाम्पल दिया. एक ही चीजें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होगा इट विल बी वर्किंग एज ए एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब इन अ सेंटेंस. इतना घूम घुमा के बता रहा है, एक ही चीजें समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं इट विल वर्क एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस. क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर आप देखिए लें, द चिल्ड्रन विश द टीचर इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस. किस तरह की आवाज में विश किया यहाँ पे बताया जा रहा है? Song wise.
द मैराथन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द थर्ड वीक ऑफ द फरवरी। कब या ये मैराथन जो है कब हेल्ड होने जा रहा है? तो ये अभी यहाँ पे आपने देखा द पार्ट्स एंड जो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये कब मतलब द मैराथन इज गोइंग टू बी हेल्ड, ये कब हेल्ड होने जा रहे हैं, कब ये मतलब कब इसका आयोजन होने जा रहा है, हेल्ड इन द फरवरी। तो यहाँ पे ये आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे द चिल्ड्रन विश द टीचर, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? विश करने का काम हो रहा है। और विश किस तरह किया जा रहा है, ये यहाँ पे इन सिंग सॉन्ग वॉइस से क्लियर हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये आपका एडवर्ब हो गया कि नहीं? अब एडवर्ब में एक आपका सिंगल वर्ड तो है नहीं, अगर सिंगल वर्ड होता तो सीधा एडवर्ब होता। अब लेकिन यहाँ पे कई सारे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज वर्किंग एज ए एडवर्ब। तो दैट मीन्स कि ये आपका फ्रेजेस हो चुका है कि नहीं? यस सर। अगर नॉर्मल एडवर्ब होता हो और ये फ्रेज जो है आज एडवर्ब काम कर रहा है। ये चीजें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ let us look at some more examples. Last few examples, 4 or 5 examples are there. Thereafter we are going to give the answer of the questions. We are going to solve the exercise. So let us have some more example. The first line, I threw the ball with great force at Jerry. I threw the ball, यहाँ पे एक काम हो रहा है, बॉल फेंकने का काम हो रहा है। कौन? I threw the ball, मैंने बॉल फेंका। अब बॉल किस तरह फेंका गया? with great force at Jerry, जेरी की तरफ फेंका, जेरी को फेंका विथ ग्रेट फोर्स। ये मतलब तो विथ ग्रेट फोर्स, यहाँ पे आपका विथ ग्रेट फोर्स। अब आपका सिंगल वर्ड तो है नहीं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो एक तरीके से फ्रेजेस हुआ। स्टार्टिंग विद द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वर्ड के साथ शुरू हुआ, दैट मींस कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। लेकिन आप ये बताइए जो प्रीपोजिशनल जो यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है या एज एन एडजेक्टिव? एडवर्ब। वेरी गुड। एडवर्ब इसलिए होगा, ध्यान से सुनिए क्यों होगा। यहाँ पे पहले बस ये जानने के लिए कि क्या जो भी वर्ड्स है या जो भी कोई भी वर्ड या कोई फ्रेज है वो एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या है, इसको पहचानने के लिए सिंपल सा आप उस सेंटेंस एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर खोजिए कि इसमें कौन सा काम हो रहा है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? आई थ्रू द बॉल, थ्रो करने का काम हो रहा है, बॉल थ्रो करने का काम हो रहा है। तो जो आपका विथ ग्रेट, बहुत तेजी से, बहुत तेज, तो ये फेंकने का काम तेजी से हो रहा है ना, तो ये फेंकने को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ओके, यस सर। यस सर। द स्टोर कीपर लीन अगेंस्ट द काउंटर, द स्टोर कीपर लीन अगेंस्ट द काउंटर मिनाकिंगली, जो भी है। तो द स्टोर कीपर लीन अगेंस्ट द काउंटर, यहाँ पे क्या जो लीन्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है, या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या एडवर्ब की तरह काम कर रहा है? सर एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। यस, एडजेक्टिव इज द करेक्ट। सर एडजेक्टिव। In the tree was a squirrel racing towards the ground with its tail curl over its back. अब इसमें अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे कई सारे फ्रेजेस हैं। In the tree was a squirrel, in the tree was a squirrel। अब in the tree जो है वो इनके साथ शुरू हो रहा है। The tree is a noun, noun के पहले आपका preposition, ये कहीं ना कहीं आपका prepositional phrases form कर रहे हैं। Towards the ground is also the name of the place, before that there is a preposition towards the ground, prepositional phrases is also there। With its tail, ये अपने पूंछ से एक तरीके से, तो here is also the prepositional phrases। Over its back, 4 prepositional phrases are there in this line। चारों समझ में आ रहे हैं? Yes sir। My grandma told me a story about the brave Bhagat Singh। My grandma told me a story about the brave Bhagat Singh। अब यहाँ पे जो prepositional phrases हैं ये आपका as an adjective या adverb किस तरह काम कर रहा है? क्या बताइए? नेक्स्ट
दीपिका, ये बताने का काम हो रहा है, तो क्या ये द ब्रेव भगत सिंह ये बताने को लेकर के Sad word. मॉडिफाई कर रहा है ये, या फिर स्टोरी को मॉडिफाई कर रहा है? द ब्रेव भगत सिंह स्टोरी को मॉडिफाई कर रहा है या टोल्ड या टेलिंग पार्ट को, कहने की पार्ट को? स्टोरी को मॉडिफाई कर रहा है। इट इज एडजेक्टिव नॉट वर्ब। स्टोरी कैसे कहा जा रहा है ये नहीं बताया जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है ये नहीं बताया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, जो भी एक्शन है वो किस तरह किया जा रहा है, बहुत फोर्सफुली, बहुत धीमे। यहाँ पे आप अगर देखे तो ये जो यहाँ पे थ्रो का एक्शन था पहले लाइन में, ये कैसे किया जा रहा था, बहुत ही तेजी से, विथ ग्रेट फोर्स। तो दिस वाज आ जाए, लेकिन यहाँ पे वो कैसे वाला क्वेश्चन नहीं है, हाउ इट इज हैपनिंग, इसका आंसर नहीं मिल रहा। तो दैट मीन्स दिस इज एन एडजेक्टिव। फिलहाल ये प्रीपोजिशनल, आपको एडजेक्टिव एडवर्ब से ज्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा डिटेल में समझने के लिए बस आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को पहचानना है। Between you and me, I do not like the way Sunil teases the new boy about his dresses. So, after few examples, let us have some questions, and you all have to answer that. You all need to identify the prepositional phrases. Okay. So, in the first line, पहली line एक बार पढ़िए प्रिया। in The car stopped in the middle of the floor. बेटा क्या बोले, चलो ठीक है, एक चीज इसको पढ़िए क्या लिखा है। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा पढ़ाना बेकार है। ये क्या लिखा है, पढ़िए। Stop. स्टॉप नहीं है, ये स्टॉप है। पहली बात तो ई बोलना शुरू करिए, स्टॉप नहीं है, स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है, आधा सा से शुरू होता है, ये स्टॉप है। फिलहाल चलिए, लेकिन इसमें ईडी अगर लग गया तो क्या हो गया, ये Stop. क्या हो गया? Sir, stop. स्टॉप। ये क्या लिखा है? Talk. टॉक। ये क्या हो गया? Talked. यहाँ पे टॉकेड क्यों नहीं बोल रही हो? जब ऊपर स्टॉपेड बोल रही हो तो इसको भी टॉकेड बोलो, क्या सही है? Talked. स्टॉप्ड। दोबारा ईडी को एड बोलना बंद करिएगा मैडम। स्टॉप्ड होता है, टॉक्ड होता है, पुश्ड होता है, फ्रेम्ड होता है, एड नहीं होता, ठीक है? क्लास 6 में पढ़ रही हैं, Yes, sir. इसलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा। द कार स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द फ्लाईओवर। You all need to underline the prepositional phrases in this line. कौन बताएगा where is the prepositional phrases? in In तो preposition है, हमें prepositional phrases बताना है। of the flyover. The middle of the flyover. चलिए अंश पांडे आप बताइए। Sir, the middle of the flyover. The middle of the flyover. दीपिका आप बताइए। The middle of the flyover. ये prepositional phrases की बात कर रहे हैं ना। सिद्धार्थी आप बताइए। The middle of the flyover. महक आप बताइए। Sir, in the middle end of the flyover. अभी थोड़ा सा आप लोग बेटर कर पाए हैं। अब एक चीज देखें, सबसे पहले अभी कई लोगों ने बोला द मिडल ऑफ द फ्लाईओवर। ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होता है? प्रीपोजिशन से शुरू होना चाहिए। द आपका प्रीपोजिशन वर्ड है? In. No, sir. पहले ये बताइए तो क्या द आपका प्रीपोजिशन फ्रेज वर्ड है? No, sir. तब तो द मिडल ऑफ द फ्लाईओवर तो सभी का गलत है, सिर्फ एक बच्ची ने नहीं बताया, महक ने। बाकी सभी ने दा से शुरू किया था। दैट मींस कि एवरीबॉडी इज रॉन्ग।
अब महक की बात करते हैं। महक ने बताया देयर इज 2 phrases, एक है इन द मिडिल, दूसरा है ऑफ द फ्लाईओवर। यही बोला ना महक आपने? Yes, sir. चलो जरा चेक करते हैं। द कार स्टॉप्ड, कार स्टॉप हो गया कहां पे? इन द मिडिल। कार स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द फ्लाईओवर, इन द मिडिल ऑफ द फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के मिडिल में। दैट मीन्स हियर in the middle and of the flyover both are working as a prepositional phrases. Mehak is correct. Okay, rest of the students are wrong. Now come to the second line, the man in the window seat. अब ये stepped में नहीं है प्रिया, यह है stepped। क्या है? STEP, step, step से stepped बना। अब यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना चाहिए, जो जब P में ED लगता है तो डबल P हो जाता है। अगर सिंगल लिखा होता, बिना इसका बेस फॉर्म लिखा होता तो STEP होता है। तो स्टेप का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आपका स्टेप्ड होता है, यहाँ पे डबल पी कर दिया गया। जैसे स्टॉप का स्टॉप्ड होता है वैसे स्टेप का स्टेप्ड, इसको स्टेपेड मत पढ़ देना। द मैन इन द विंडो सीट स्टेप्ड आउट। अब इसमें विच वन इज द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस? In the window seat. Sir, in the. Sir, in. Sir, in. इन रॉन्ग है, Sir, प्रीपोजिशन नहीं पूछ रहा हूँ, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस पूछा जा रहा है। इन Sir, आपका in क्या है? the प्रीपोजिशनल window- फ्रेजेस है, ये फ्रेज है क्या है बताइए? Sir, in the window seat. इन द विंडो सीट, वेरी गुड। इन द विंडो सीट पूरा कंप्लीट है। Sir, in the window seat stepped out. हाँ भैया पढ़े हैं, कौन पढ़े हैं? जरा फिर से पढ़िए, सिद्धात्री पढ़िए। Sir, in the window seat stepped out. स्पेड है, एक बार और पढ़िए। अभी 4 बार मैं बता रहा हूँ तब यह हाल है, अभी भी बता रहा हूँ। Sir, प्रिया जरा आप बताइए क्या लिखा है ये? stepped रहेगा। Sir, step. इस पे पा से शुरू Sir, बेटा। अंश पांडे आप बताइए। Sir, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? क्या लिखा है ये? yes sir. क्या लिखा है? Sir, stepped. स्टेप्ड। Sir, stepped. ये बेटा STEP, स्टेप, स्टेप से स्टेप्ड। द मैन इन द विंडो सीट स्टेप्ड आउट। महक जल्दी से बताइए बेटा, विच वन इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज? In the window seat. इन द विंडो सीट। चलिए ठीक है। In the window seat. Okay. Now come to the third line. He was wearing a pin-striped suit with a blue tie. He was wearing, वह पहनी हुई थी, वह पहने हुए था, a pin-striped suit with a blue tie. इसमें कौन सा है? Sir, with a blue tie. With a blue tie. ये तो सबसे आसान है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को, आप प्रीपोजिशन वर्ड खोज लो बस। फिर भी अगर कोई गलत बताए तो बात अलग है। इन द डी ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड टू द केमिस्ट। Sir, to the chemist. क्या होगा दीपिका? Sir, to across the road to the chemist. एक ही कितने फ्रेजेस हैं? अक्रॉस द रोड टू द केमिस्ट, ये भी है। इनसाइड द स्टोर, ये आपका है ही। Yes. Inside the store, he leaned towards the counter, and started Counter. speaking in a house, in a In hushed tone. House नहीं, मैंने ही गलत पढ़ा। HUSHED, hushed tone. There are 3 phrases ना in this sentence. Yes sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir.
चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. In the second question, what we have to do? You read the sentence and write the prepositional phrases in the correct column. आपको इसमें से क्या करना है? there are 6 sentences. इन 6 sentences में सबसे पहले आपको prepositional phrases खोजने हैं. फिर उस prepositional phrases आपका adjective की तरह काम कर रहा है या adverb की तरह काम कर रहा है, ये आपको पहचानना है. फिर अगर adjective की तरह काम कर रहा है तो adjective वाले कॉलम में लिखना है, और अगर एडवर्ब की तरह कर रहा है देन यू हैव टू राइट इन द एडवर्ब कॉलम. क्लियर? कर ले जाएंगे? Yes, sir. कोशिश करते हैं. Yes, sir. द डायमंड वर हिडन इनसाइड ए जापानीज फिगरिंग. क्या होगा इसमें? Sir, inside a Japanese finger. इनसाइड ए जापानीज फिगरिंग. यही है? क्यों महक? तो ये आपका इनसाइड ए जापानीज फिगरिंग, ये आपका एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? क्यों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो मैं पूछ रहा हूँ ये आपका एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? Adverb. सर एडवर्ब. एडवर्ब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है भैया. इनसाइड ए जापानीज फिगरिंग, ये आपको किस मतलब ये किस तरह छिपाया जा रहा है? इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम किया द डायमंड फॉर हिडन किया जा रहा है. किसी चीज को छिपाया जा रहा है, डायमंड्स को छिपाया जा रहा है. ये किस तरह छिपाया जा रहा है? ये इस फ्रेज से पता चल रहा है या कहाँ छिपाया जा रहा है? नो सर. किया जा रहा है. No, sir. Sir. ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. इट्स एडजेक्टिव. ओके, Yes, sir. सर एडजेक्टिव. गलत बता दिया आप. कह रहे हैं एडजेक्टिव. जब आपने एडवर्ब बताया किसी ने, तब अगर मैं बोलूं नहीं रॉन्ग है तो दूसरा तो एडवर्ब तो होना बनता ही है. पहली बार में सही बोले तो जाने. अंटिल टुडे आई हैव नेवर लाइक दिस फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. व्हिच वन इज द prepositional phrases? कौन सा है? जल्दी बताइए. Sir, of ice cream. ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम. ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, इट्स करेक्ट. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई हैव नेवर लाइक्ड दिस फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. ऑफ आइसक्रीम ये किसके बारे में बताया जा रहा है? एडवर्ब या एडजेक्टिव? सर एडजेक्टिव. Adjective. तो यानी जो आपका सब्जेक्ट है नाउन प्रोनाउन, अ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. बेटा ये एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा? आप सोच लीजिए. लाइक, आई हैड नेवर लाइक. अब इसमें एक बार क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं इस सेंटेंस को. आई हैड नेवर लाइक, मैंने कभी भी नहीं पसंद किया है. दिस फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, इस तरह के जो फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, इस फ्लेवर के आइसक्रीम को कभी नहीं पसंद किया है. तो ये फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई को या पसंद को? पसंद को. पसंद को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ये एडवर्ब होगा. आप इसका मतलब निकाल करके तब एक बार कोशिश किया करिए. ठीक है, आप जैसे मैं निकाल रहा हूँ सेम, कई बार आपका जो सेंस क्या निकल रहा है उससे क्लियर होगा. बेटा लास्ट 2 मिनट इज गोइंग ऑन. पुट द फ्लावर इन द व्हाइट वेस. पुट द फ्लावर इन द व्हाइट वेस. व्हिच वन इज द इन द व्हाइट वेस? आपका यही तो होगा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. ये आपका एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? कौन सा काम हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है इसमें? ये बताइए कौन सा काम हो रहा है? रखने, फ्लावर को रखने का काम हो रहा है, यानी पुट का काम हो रहा है. अब ये किस तरह रखा जाए या रखने, ये द व्हाइट वेस क्या पुट से कोई रिलेशन दिखा रहा है? पुट को मॉडिफाई कर रहा है? पुट को तो नहीं मॉडिफाई कर रहा है ना? कर रहा है. रखने का काम कैसे होगा? व्हाइट वेस की तरह होगा.
Word based. No, sir. ये एडजेक्टिव का क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव ये या एडवर्ब क्या है? adjective है. Sir, Adjective. Sir, adjective. Now move ahead on next line. I like the scarf with the red flowers. I like the scarf. यहाँ पे क्या काम हो रहा है? पसंद करने का काम हो रहा है स्कार्फ को. I like the scarf with the red flower. जो स्कार्फ है वो रेड फ्लावर वाला रेड स्कार्फ. अब ये विद द यहाँ पे आप देखेंगे ये तो आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेजेस विद द रेड फ्लावर. लेकिन ये विद द रेड फ्लावर आपका लाइक से रिलेशन है इसका या स्कार्फ से? इसको मॉडिफाई कर रहा है. क्यों बेटा? आई लाइक द स्कार्फ. मुझे स्कार्फ पसंद है. कौन सा स्कार्फ? विद द रेड फ्लावर. रेड फ्लावर वाले स्कार्फ मुझे पसंद है. तो ये रेड फ्लावर आपका स्कार्फ को मॉडिफाई कर रहा है, स्कार्फ के बारे में बता रहा है या लाइक के बारे में बता रहा है? स्कार्फ के बारे में. यस. तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव. द लास्ट वन. लास्ट क्या है? ये द सेकंड लास्ट. द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस. द थीफ वाज कॉट. चोर को पकड़ा गया बाय द पुलिस. पुलिस के द्वारा. अब इसमें आपका एडवर्ब क्या है? रीड द सेंटेंस विद द राइट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन द करेक्ट कॉलम. ओके. इसमें से अब आपको एडवर्ब और या वर्ब आपको फाइनल करना है. इसमें कौन सा? द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस.